راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان عادل مشتاق حاضر ہے اور آپ سبھی کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہے اور دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو محفوظ اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، گرمی ہے اور گرمی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور محنت کش لوگوں کے لیے خاص طور پر واقعی یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اور جب میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں اور بہت سے محنت کرنے والے، پچھلے دنوں میں نے گندم کی کٹائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور بڑی محنت کی۔ جب میں ان کی حالت دیکھتا تھا گزرتے ہوئے، چونکہ گاؤں سے میرا تعلق ہے، تو میں دیکھتا کہ ان کے کپڑے اور ان کا جو حلیہ ہے وہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، لیکن جس دن انہوں نے کٹائی مکمل کر لی اور ان کو جناب گندم ملی تو بڑے خوش باش نظر آ رہے تھے۔ اسی طور پر میں نے ایک اخبار میں تصویر دیکھی، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ ایک طرف کچی چھلی تھی اور ایک طرف پکی ہوئی چھلی تھی، اور کچی چھلی کی قیمت 5 روپے اور جو پکی ہوئی چھلی تھی اس کی قیمت لکھا تھا 20 یا 30 روپے۔ تو وہاں پر جو نیچے بات لکھی تھی کہ کئی دفعہ ہمیں مہنگا ہونے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ واقعی جب ہم کچھ بننا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تب ہمیں مشکلات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نو پین نو گین، یعنی کہ اگر درد نہیں تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زندگی میں جب محنت کرنی ہے تو پھر ضرور ہمیں آگے ترقی بھی ملے گی، اور یہ ہمیں لازمی کرنی چاہیے، کسی بھی ناجائز طور پر نہیں بلکہ محنت سے آگے بڑھیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے، اور جناب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہم تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور برکت اور رہنمائی پاتے ہیں۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ سنا ہم نے بہت ہی بابرکت اقتباس کلام مقدس میں سے کہ کیسا اظہار ہے، یا رب معبودوں میں سے صرف اور صرف تیری تمجید کروں گا، کیونکہ وہ اس بات کا ادراک پا گئے کہ واقعی خداوند تعالیٰ کی ذات ہی سچا اور ایسا معبود ہے جس کو تعظیم واجب ہے، جس کو عبادت واجب ہے، اور جس کے حضور ہم سب کچھ پیش کر سکتے ہیں، اور جو ہماری ہر ضرورت کو، ہماری ہر دعا کو پورا کر سکتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ خدا کرے کہ ہم ہمیشہ اسی کی تعظیم اور تمجید کرتے رہیں۔ جناب میں یہاں پر انتہائی عاجزانہ دل کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کا، جو بڑی محبت کے ساتھ اپنا وقت نکال کر نہ صرف پروگرام راہ زندگی کو سنتے ہیں بلکہ اس کے تعلق سے ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں حوصلہ دیتے ہیں تاکہ ہم اس اچھے کام کو جاری رکھ سکیں۔ تو آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، اور جو لوگ نہیں لکھتے یا نہیں لکھ پا رہے ان کو میں پتہ بتائی دیتا ہوں، ضرور لکھا کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال، واٹس ایپ یا ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے جناب 0316777655 یعنی 031674777655، اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا
यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप जरूर सुने, इन पर कमेंट्स करें, इनको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो अभी जनाब बिला ताखीर में खतूत शामिल करूंगा। प्यारे भाई आमिर जमील, क्या हाल चाल है जनाब आपके? साहिवाल से आपका ताल्लुक है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई आपने लिखा, मोहतरम जनाब डायरेक्टर साहब आकाश इमैनुअल आदाब, और आपने इसी तौर पर अमजद साहब का जिक्र किया और सारी टीम को आपने सलाम पेश किया और आपने कहा कि राह जिंदगी जोशुआ भाई की मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि हमें प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे लगे, जिसमें आपने तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत और कुदरत के करिश्मे और उसमें आपने सफेद नमक की बाबत जो बात हुई उसको आपने काफी पसंद किया। आपने कहा कि तमाम जो प्रोग्राम है बहुत ही मुफीद और मालूमाती पाया और सिलसिला हादसात से बचाओ आपको बेहतरीन लगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपके सारे इस फीडबैक का। आपने कहा कि राह जिंदगी का इतना शानदार प्रोग्राम पेश करने पर हम प्रोग्राम पेश करने वाले तमाम मेजबानों और प्रोग्राम के लिए तमाम स्क्रिप्ट और स्टूडियो को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। रेहान मुस्तफा जिनका ताल्लुक है बहावल नगर से, आपने भी कहा कि प्रोग्राम आपने बाजी उस्मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना। आपने भी सारी टीम को आदाब कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम सारी टीम की जानिब से। और आपने कहा कि प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की गई, दुआ के साथ कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, ये बात की गई। और नफरत को कभी भी हमारे दिल में पनपता नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको खत्म होना चाहिए। और इसी के साथ आपने दीगर सिलसिलों को पसंद किया है। इसके अलावा आपने दीगर तमाम दोस्तों के खतूत का तज़किरा किया, जिसमें हस्बे मामूल आपने प्यारे भाई अमजद खान का और उनकी पूरी फैमिली का जिक्र किया है। आपने काजी समसून के ताल्लुक से जो किस्त आपने सुनी ड्रामा चिरागे राह की, उसको भी पसंद किया, बहुत शुक्रिया। अगला खत मेरे पास मौजूद है, ये एक इज्तिमाई सा खत मुझे लग रहा है। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तमाम दोस्तों और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम सुनने वालों की तरफ से भी और राह जिंदगी की तरफ से भी आपको वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा कि फ्रेंड्स रेडियो लिसनर्स क्लब फैसल आबाद पाकिस्तान के जो दोस्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इनमें साजिद इलियास अंसारी, राना अब्दुल सत्तार नाज, अब्बास जट, मियां महमूद अहमद आराई, मियां खां वट्टू, आमिर फूल भाई, हाजी खालिद महमूद, अमजद खान, मोहम्मद जावेद और राय विलायत खरल साकी, आप सबकी जानिब से सलाम पेश किया गया, वालेकुम अस्सलाम। और आपने जो सराहा, हमें प्रोग्राम को पसंद किया, हमें हौसला दिया, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया आपका। हैदर सैयद, आपका ताल्लुक है साहिवाल से। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सारे दोस्तों की अच्छी काविश हमें बहुत पसंद आई। ड्रामे चिरागे राह भी सुना और इसके साथ साथ प्रोग्राम के तमाम सिलसिले हमें बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी दोस्त हमें खत लिख रहे हैं, हमें फीडबैक देते हैं, बहुत शुक्रिया। अभी मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आपको लिए चलूंगा आगे। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है स्ट्राइकी ड्रामे का, आइए मिलकर सुनते हैं। एक घन मेरी धी जल्दी जल्दी नाश्ता कर गए न ते वाल तेरा भी रात को छोड़ आवे। तो अल्लाह सैया तू खैर करे, आज वाल मेरी सज्जी अख फड़कदी खड़ी है। ओहो अम्मा, परसों मेरा फिजिक्स का पेपर है, बहुत चंगी मेरी तैयारी है, पर पता है क्या, रतों की मेरी सज्जी अख फड़कन लगी है, बस मेरा पेपर चंगा ही नहीं था। मेरा बच्चा सियाने गलत नहीं आते, मर्द दी खब्बी अते औरत दी सज्जी अख फड़के तक नुकसान थींदे। अल्लाह खैर करे। तौबा तौबा, वे जेड़े वेले आओ सज्जी खब्बी दे चक्कर च होंदी है तेरी मां। आओ बुझी आओ। रिजवाना पुत्र जी, आज अकरम साहब दे घर वजने जोल पुत्र, मैं तेको भी छोड़ी देसा। ना ना, पहले जरा सज्जी खब्बी वाली गाल तो दस, कौन रांधे सज्जी खब्बी दे चक्कर च? वाल चिट्टे थी गए पर सज्जा खब्बा मारा न छोड़े। ओहो अम्मी जी प्लीज, आज भी मेरा बायोलॉजी दा पेपर है, बस दुआ करे जो चंगा थी वने। इंतजार हुसैन क्या थी गए तो को? हाय हाय धी ते को पराठा चाह की देवे ओ को करन दे और नाश्ता ओ भुखी खड़ी है फजर दी। दसो ओए आप ता आखे रजो जो बिया लो जी, मैं बिया घेन की थे।
बस बस अबू जी मैं तो इतना ही नाश्ता करना ही बस। अम्मी जी प्लीज तुसा दुआ करे मेरा पेपर चंगा थी वने बस। अल्लाह खैर करे। हाँ बस। तो अज मेरी सजी अख वाल फड़कदी खड़ी है। ये जडानी फड़के कोई परेशानी कोई नुकसान जरूर थींदे। बाबा बहिश्ती आदा हुंदा है जो मेरी शीमो नजूमण है हर खुशी गमी कनु पहले मेरी सजी या खबी अख फड़कदी जरूर है और मैं ता किस्मत दे हाल ही दसे नहीं हामी। तौबा तौबा हैं ओ क्या कहीं दी किस्मत दा हाल दसे सी। अच्छा अच्छा ज्यादा गाल ही ना कर ना ता दसे सही वाल मैं ही कुछ। ओहो अबू जी पहले तू दस गेन भाई। अबू जी प्लीज आओ तू को देर थई खड़ी है। अच्छा मेरा पुत्र आओ बस प्लीज लड़ो ना। अम्मी जी प्लीज तुसा दुआ करे आज तुम्हारी सजी अख भी फड़कदी पई है मैं तो डर लगदा पे। ओ चल आ पुत्र आ जुल्लू आज तां जिवें तिवें पेपर लिया कल अखियां वाले डॉक्टर को मिल के ना तेरी मां दी अख दा पक्का ही मक्कू ठपवे सा ए रो दी चक चक तो मुक्सी आ तू मेरा पुत्र। हाँ हाँ देखो तो सही मना मक्कू ठप्पण वाला उठी नहीं सकता आलसी मोया। जी बीबी तुसा क्या दे प्यावे? डॉक्टर साहब असा तक कोई पीर फकीर सन्यासी हकीम नहीं से छोड़ा पर समझ नहीं आंदी मेरी रिजवाना को क्या ठीक है। एडी लेक ते जहीन बच्ची है जडन दी फेल थई है दौरे पौंदे ने खावन पीवन औतरी ने छोड़ दी ते अधी नहीं रही। पाशा साहब ने मशवरा दिता है। डॉक्टर साहब मेरी तो सजी अख वाल फड़कदी पई है अल्लाह खैर करे। मैं तुहारी बच्ची दे बारे च पूरी हिस्ट्री घन दी है। बच्ची तुहारी बहु हसास है। जिया जिया हसमुखता है। हाँ मैं ये आदा प्याम जो रिजवाना मैट्रिक तक क्लास टॉप करेंदी है अते एफएससी यकदम इतनी जहीन बच्ची दा फेल थी वजन खालिसतन नफसियाती मसला है। डॉक्टर साहब ई मसले वाले बचता पौंदन दसो डॉक्टर साहब मेरी तो अख फड़कदी पई है अल्लाह खैर करे। दरअसल बच्ची गैर जरूरी तौर ते वहम विच मुब्तला थी गई। पर क्या वहम थी गया? इंतजार मियां बच्चे अपने मां प्यो कनु ही सीखते हैं। अच्छा वालदैन दा फर्ज बनदे जो बालों को सेहतमंद शहरी बनावन कीते उन्हां को सेहतमंद रिवायतां दसे। डॉक्टर साहब ई मोए दी ता सेहत ही चंगी कहनी ए क्या सेहतमंद गानी करे सी बठ पई हयाती जरन इदे नाल मेरा रिश्ता थिया हाई और मेरी तो सजी अख फड़कन लगी है हूं नी ते आज दा नी आज तोड़ी फड़कदी खड़ी है रुकी कहनी मेरी सजी अख। मैं भी बीबी ताकू ए दसना चाहना जो तुहारी बच्ची दा फेल थीवण अते बीमार थीवण दी असल वजह यह तुहारी सजी अख है। क्या आदे पे डॉक्टर साहब? हाँ सुनो ना तुसा अपनी धी को इयो वहम पवारी ते जो सजी अख फड़के तो नुकसान थींदे बस ऊ ही गाल दा इतना असर गिदे जो उंदी अपनी अख भी फड़कन लग पेगी ते वो नफसियाती मरीज बन गई। हालांकि ये सब वहम है। अख फड़कन असाबी कमजोरी दी अलामत है ते इंदा कोई फायदा है ना नुकसान। एक कटवा छोड़ी जे ठीक नहीं सी बस। जी तो सुन रहे थे हम आज सच्ची अख के उन्वान से ये ड्रामा। तो वाकई हम जो कुछ बच्चों के सामने करते हैं जो बच्चों के सामने बोलते हैं वो उनके अंदर सरायत करता है भले अच्छी आदत हो और भले ऐसी बुरी आदत जिसने उस बच्चे को इतना परेशान कर दिया कि वो ज़हीन फतीन से नालायक या एक तरह से जीरो पर आ गई। तो अच्छी आदत अपनाएं और अच्छी परवरिश करें। मैं आज आगाज में बात कर रहा था कि हम जब मेहनत करते हैं तो उसका अजर खुदा ताला की जात हमें देती है। गो के मेहनत करना मुश्किल है और इसलिए मैं उसको मुश्किल कहता हूं कि जो नाजायज तरीके से शॉर्टकट तरीके से दौलत भी आसानी से मिल जाती है और लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लोग सहल पसंदी की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। कई दफा तो वो मेहनत ना करने की वजह से वो जुराइम की तरफ निकल जाते हैं। तो हमें इससे बचना है, हलाल रिज्क कमाना है और जो कुछ भी करना है मेहनत के बलबूते पर करना है। उसमें कभी फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होगी और हमारी कामयाबी में भी वकार होगा। तो जनाब आइए अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है सिलसिला आप बीती का जो हमें हर दफा एक अच्छे तजर्बे को ना सिर्फ
सुनवाती है बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए सुने। मेरा नाम अमजद परवेज है और मेरा तल्लक एक गांव कमालपुर से है जो फैसलाबाद से 40 किलोमीटर के फासले पे है। और मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया रूनमा हुआ और एक ऐसी बात मेरी जिंदगी में है जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकता। मेरे एक दोस्त थे, हम मैट्रिक में इकट्ठे पढ़ते थे और जब हमने इम्तहान दिया तो उसके फौरी बाद वो जो मेरा दोस्त अजहर था वो बैरून मुल्क यानी सऊदी अरब चला गया। उस वक्त चूंकि मीडिया का दौर नहीं था, टेलीफोन की तो बिल्कुल कोई सहूलत नहीं थी, लेटर्स के लिए ही दूसरों के साथ राब्ता किया जाता था। और जब बैरून मुल्क यानी सऊदी अरब चला गया तो 6 माह 7 माह गुजरने के बाद भी उसका कोई लेटर ना आया। और उसकी वालदा थी और उसकी एक बड़ी सिस्टर थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। और एक दिन मुझे किसी के जरिए से मैसेज मिला कि उसकी वालदा जो है अजहर की वालदा वो आपको बहुत याद करती है। मैं एक दोस्त के हमरा मैंने मैसेज भेजा कि हम फलां दिन आएंगे और हम दोनों दोस्त वहां गए। और जिस दिन हमने बताया था कि हमने आना है तो हमारी इस बुजुर्गा ने हमारी खुशी के लिए गाजर का हलवा बनाया हुआ था। वो सुबह से उठकर वो उसको तैयार कर रही थी। पता चला कि दूसरे सायों से कि आज पता नहीं इस बुजुर्गा के लिए कितनी खुशी का दिन है कि ये सुबह से भाग रही है, कभी इधर जाती है कभी इधर, और सोच रही है कि मेरे बेटे के दोस्त आने वाले हैं। क्योंकि वो उन दिनों इतनी परेशान थी कि जब 6-7 माह उसका कोई राब्ता नहीं था तो मायूस होती थी, परेशान होती थी और अक्सर रात भर रोती रहती थी उसकी याद में, अपने बेटे की याद में। तो जब हम गए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। और जब उसने हमें देखा तो उसने हमें बाहर से ही लेके अंदर आई और वो पानी लेके आई और फिर उसने कहा कि रात को मैंने सोचा कि मेरे बेटे आने वाले हैं और उनके लिए मैं कौन सी ऐसी डिश तैयार करूं, कौन सा खाना बनाऊं जो उन्हें अच्छा लगे। और क्योंकि मुझे याद आया कि अजहर जो है ये गाजर का हलवा बहुत पसंद करता था और आप भी उसके दोस्त हैं, हो सकता है कि आपको भी ये बहुत पसंद होगा। सो उसने बड़ी खुशी के साथ हमारे लिए वो लेके आई, उसके साथ कुछ बातें भी की। और जब वो हमारी बुजुर्गा वो खाना लेके आई यानी वो गाजर का हलवा लेके आई तो जब पहला ही हमने चम्मच खाने के लिए लिया तो इतना बदजायका था कि खाने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन उसकी खुशी को देखकर हमने उसको खाया। और जो मेरा साथी था वो कह रहा था मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने खाना है। सो एक प्लेट मैंने खाई और फिर मैंने कहा अम्मा जी इतना मजा आया है, मेरा मजीद दिल कर रहा है कि मैं मजीद लूं। तो उसने बड़ी खुशी के साथ बहुत खुश हुई। और उसकी खुशी को जब मैंने देखा तो मैंने ये दरास्त की तो वो एक प्लेट और लेके आई और मैंने खाया। और फिर मैंने उसके साथ शेयर किया कि आपके हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा इतना मजेदार है, जब अजहर आएगा तो फिर भी हम बैठ के ना दोनों खाएंगे। और ऐसा हुआ कि जब उसको ये जो उसने सारी कैफियत को देखा और इतनी खुश थी, और मैंने देखा कि जब वो हमें मिली है और उसको जो अजहर की जुदाई के सिलसिले में जो गम था वो भूल गई और वो खुशी के साथ हमारे दरमियान बैठी रही। और ये उसने जो डिश तैयार की थी वो हमारे दरमियान लेके आई। और मैं जब इस अपनी बुजुर्ग माँ की जो कैफियत को देखता हूँ तो आज तक वो सीन मेरी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होता। एक जो ममता है वो उसकी अपनी औलाद के तल्लक से जो जुदाई का एहसास है वो कितना महसूस होता है। और जब उसके दोस्त मिलते हैं तो वो उनमें से अपने बेटे को देखना चाहती थी। और इस सारी बात से ये मैं सीखता हूँ, किसी के गमों को कम करने के लिए, किसी की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें जरूर अमली तौर पर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी हम खुशियों में इजाफा कर सकें। जी तो आज की आबिती में कैसी बात है जनाब, आज एक माँ की अपने बेटे के साथ मोहब्बत का तस्करा हुआ, बात हुई। तो वाकई वालिदैन क्या खूबसूरत रिश्ता है। भले हम 2 बहन भाई हों या इकलौता बेटा या बेटी हो या घर में 10 या 8 बहन भाई हों,
ہمیں ماں باپ ایک جیسا پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے, کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے. تو خدا تعالیٰ کا شکر اس رشتے کے لیے جو ہمیں خدا تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہمیشہ ہم ان کی قدر کریں, ان کے ساتھ وفادار رہیں اور ہمیشہ ان کی خدمت کریں, کیونکہ ان کی خدمت کے وسیلے سے ہمارے لیے اجر جڑا ہوا ہے, ہمارے لیے انعامات جڑے ہوئے ہیں جو خدا کے پاک کلام میں ہے. عمر کی درازی ہے, زمین پر برکت ہے. تو آئیے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا, لیکن جانے سے پہلے ہم جھکیں گے رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے اور مل کر ہم دعا کریں گے. اے رب کریم, ہم شکر گزاری کرتے ہیں تمام سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے. ان تمام خاندانوں کو, تمام سامعین کو برکت اور رحمت سے معمور رکھیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم محنت کریں اور محنت کے بلبوتے پر ہم اپنے خاندان کی, اپنے ملک کی ترقی کا ہم وسیلہ بنیں. اور اسی کے ساتھ ہم پاکستان کے لیے, اس کے تمام اداروں کے لیے, حکومت کے لیے, عدلیہ کے لیے, افواج کے لیے, تمام شعبوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو. خدا حافظ.